if there is any change in nucleotide sequence in a polynucleotide chain, there is corresponding change in a type of amino acid produced. यही बताया था ना? हाँ, चलिए ये लास्ट पॉइंट होगा ना. अब इसके बाद क्या आया? To understand this, कि how change in nucleotide sequence results in change in type of polypeptide, concept of genetic code was proposed. Right on. To understand, right on, next one, to understand how change in polynucleotide chain results in change in type of polypeptide produced, concept of genetic code was proposed. Concept of genetic code was proposed. According to this concept, concept of genetic code was proposed. Next point लिखिए. According to this concept, bases in combination codes for amino acid. Bases in combination codes for amino acid. Bases in combination codes for amino acid. According to this concept, right on, according to this concept, bases in combination codes for amino acid. Bases in combination codes for amino acid. Okay, bases in combination codes for amino acid. Okay, now next one लिखिए. Deciphering of genetic code. Deciphering of genetic code. Decipher means किसी राज को, जो राज छुपा हुआ है उसको खोल के निकालना कि ये ऐसा था. So deciphering of genetic code, sort of unless whatever. Deciphering of genetic code, sort of disclose like that. Okay. Deciphering of genetic code required involvement of scientists from different fields. Like physicist, geneticist, organic chemist, biochemist, etc. Physicist, geneticist, organic chemist, biochemist, etc. ठीक है. अब हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हमें 4 पढ़ना. मैंने पहले ही बताया कि जॉर्ज गेमाउ, हरगोविंद खुराना, ठीक है, मार्शल नरेनबर्ग एंड सेवेरो ओकोवा. तो फर्स्ट राइट डाउन. फर्स्ट वन लिखिए. A physicist
ये मैं आपको समझा भी चुका हूं लास्ट क्लास में। ए फिजिसिस्ट जॉर्ज गेमाउ, a physicist George Gamow proposed that in order to code for 20 amino acids, हमें पता है कि लिविंग सिस्टम में 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20, in order to code for 20 amino acid, code must be triplet. In order to code for 20 amino acid, code must be triplet, because if it is singlet, only 4 amino acid, if it is singlet, only 4 amino acid can be coded. आपको बताया था कि ए टी जी सी है, और अगर चारों एक एक अमीनो एसिड कोड कर रहा हो, 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ इट इज डबलेट, then 4^2, that is 16 amino acid can be coded. 16 amino acid can be coded. अरे भैया मैंने कहा कि अगर 4 बेस है और हर बेस एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है, हमको टोटल लिविंग सिस्टम में 20 अमीनो एसिड होता है, लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को, ठीक है। अगर 20 अमीनो एसिड है तो हमें 20 के लिए कोड चाहिए। अगर मान लो एक बेस एक के लिए कोड कर रहा है अमीनो एसिड, तो 4 बेस तो 4 ही अमीनो एसिड करेगा, 20 बन नहीं सकता। अगर मान लो डबलेट है, मतलब 2 मिलके एक अमीनो एसिड बना रहा है, तो टोटल 4 बेस है, टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4^2, तो 16 अमीनो एसिड ही बनेगा, 20 तो बनेगा नहीं, ठीक है। समझ में आई है? If it is doublet, then only 16 amino acid can be coded. So, and sorry, coded. Next, लिखिए, if it is triplet, then 4^3, or total. If it is triplet, then 4^3. Then it results in 64 combinations. Which can code for 20 amino acids. मतलब हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यहीं पे ट्रिपलेट पे आके पूरा हो रहा है, 20 वाला। सिंगलेट और डबलेट में नहीं हो रहा है, कम से कम ट्रिपलेट होना चाहिए, ठीक है। So it has 64 combination that can code for 20 amino acids. समझ में आई है? सबको ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो, ये तो इसने प्रपोज कर दिया, फिजिक्स का आदमी था, इसने अपना गणित लगा के प्रपोज कर दिया, इसने प्रूव नहीं किया। इसने सब सिर्फ ये बता दिया कि भैया कम से कम तो 3 एक साथ होने चाहिए एक अमीनो एसिड के लिए। अब बाकी का काम प्रूव करने का आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है एक साइंटिस्ट का, ठीक है, जिनका नाम है हरगोविंद खुराना। इंडियन थे, बाद में अमेरिका निकल लिए थे, ठीक है। हरगोविंद खुराना, ठीक है। अब इसने किया क्या, देखो, इसने होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर लिया।
अब ये क्या है? होमोपॉलीमर का मतलब सेम बेस है, सीसी या यूयू या एए, ठीक है। कोपॉलीमर मतलब दो अलग बेस, सीयू या फिर एयू या सीए, इस तरीके से। अब क्या किया, जैसे इसने होमोपॉलीमर को लिया और ऐड करता गया होमोपॉलीमर, सी 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 सी, तो दो दो दो, फिर दो, ठीक है, फिर दो। तो इसने क्या देखा कि अगर ये होमोपॉलीमर यूज कर रहा है, मतलब सेम बेस रिपीट हो रहा है, तो ओनली वन टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो इफ होमोपॉलीमर इज यूज्ड, ओनली वन टाइप ऑफ amino acid is produced, ठीक है। उसके बाद इसने क्या यूज किया, कोपॉलीमर यूज किया, ठीक है। अब कोपॉलीमर जब इसने यूज किया, मान लो सीयू यूज किया, सीयू 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 सीयू, तो सीयूसी यूसीयू, लेकिन फिर तो वो रिपीट हो गया, ये पहला ये दूसरा, फिर ये पहला, फिर ये दूसरा, आप करोगे तो ऐसे ही आएगा। तो इसने क्या देखा कि व्हेन कोपॉलीमर इज यूज्ड, two types of amino acid can be produced, ठीक है। So by using homopolymer and copolymer, Khurana have shown that when homopolymer is used, only one type of amino acid is produced, and when copolymer is used, two type of amino acid can be produced. तो इससे एक ये एविडेंस प्रोवाइड किया इसने कि ये जो क्या कहते हैं कोडॉन है वो ट्रिपलेट है। समझ में आई है? तो राइट डाउन हरगोविंद खुराना, by using right on, homopolymer by using homopolymer and copolymer, he has shown that by using homopolymer and copolymer, he has shown that codons are triplet. Codons are triplet. He observed that. He observed that when homopolymer is used, he observed that when homopolymer is used, only one type of amino acid is produced. When homopolymer is used, only one type of amino acid is produced. And when copolymer is used, two different types of amino acid is produced. When copolymer is used, two different type of amino acid is produced. ठीक है, तो जल्दी से बना लीजिए। क्या लिखा है? सर लेकिन ये तो 5 कोडॉन से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भैया? कुछ भी ज्ञान दे रहे हो। कौन है भैया? कौन है ये? हमारे हैं मौलिक शर्मा जी। सर्टनली तो 5 कोडॉन से भी हो सकता है। इसकी बात हो रही है, ठीक है, बेसिस की बात हो रही है, तो 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम 3 का कॉम्बिनेशन होगा तभी तो 20 अमीनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। चलिए चलिए,
सेकंड साइंटिस्ट लिखिए मार्शल नरेनबर्ग। नेक्स्ट इज मार्शल नरेनबर्ग। इसने क्या किया, इसने एक सेल फ्री सिस्टम लिया, मतलब एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें कोई लिविंग सेल नहीं था, एंड ही वाज एबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। जैसे क्या किया, जैसे सपोज करो ऐसे समझो, इसने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें कोई सेल नहीं है, दिस इज सेल फ्री सिस्टम। अब इसमें पहले इसने एक बेस ऐड किया, मान लो ए ऐड किया, फिर उसके बाद यू ऐड किया, फिर उसके बाद जी ऐड किया, तो ए यू जी एक कॉम्बिनेशन बन गया। फिर इसके बाद इसने तीन, मान लो एक एक करके यू 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 करके तीन बार ऐड कर दिया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, फिर जी यू जी कर दिया, फिर जी ए जी किया, फिर ए किया। तो ऐसे डिफाइंड सीक्वेंस में इसने बेस को ऐड किया, और जिस सीक्वेंस में वो ऐड करता गया उस सीक्वेंस अमीनो एसिड बनता गया और वो पॉलीमराइज होके प्रोटीन बना दिया। अमीनो एसिड ही तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। रेड ऑन मार्शल नरेनबर्ग, he was able to, अरे भाई बेस ऐड करोगे तो बेस उसमें एंजाइम था, पॉलीमराइज कर रहा था वो, ठीक है। रेड ऑन, he was able to synthesize protein, he was able to synthesize protein in cell free system in cell free system by adding bases, by adding bases in defined manner, by adding bases in defined manner, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नेक्स्ट साइंटिस्ट इज फोर्थ वन, ये तो थर्ड था, फोर्थ वन इज सेवेरो ओकोआ। सेवेरो ओकोआ, देखो इसने क्या किया, इसने टीआरएनए सिंथेसाइज कर दिया लैब में ही इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है, बाय यूजिंग एन एंजाइम दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड phosphorylase, which is also known as OCOA enzyme. This is also known as OCOA enzyme. Right on, Severo OCOA. He was able to synthesize new strand of RNA. He was able to synthesize new strand of RNA in template independent manner. New strand of RNA in template independent manner by using enzyme polynucleotide phosphorylase, by using enzyme polynucleotide phosphorylase which is also known as OCOA enzyme.
which is also known as OCOA enzyme. ठीक है, तो इन सब के कंट्रीब्यूशन से ये प्रूव हो गया कि bases in combination of 3 is responsible for synthesis of 1 amino acid. और ये जो 3 बेसेस है, ठीक है, उन 3 बेस का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कोडॉन, ठीक है, और जेनेटिक कोड. राइट. नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड. नेक्स्ट हेडिंग इज property of genetic code. Property of genetic code. ठीक है, तो मैं बैठ के आराम से बोल रहा हूं, जहां पे थोड़ा सा मेरे को थकान लग रही है मैं बैठ के आराम से बोल रहा हूं, आप लिखते जाओ, जहां समझाना होगा बोर्ड पे मैं खड़े होकर समझा दूंगा. ठीक है, ये मत पूछना सर कहाँ चले गए, मैं बैठ के आराम से बोल रहा हूँ. ओके, राइट ऑन. फर्स्ट, कोडॉन इज ऑलवेज ट्रिपलेट. चलो खड़ा ही रहता हूँ. राइट ऑन. कोडॉन इज ऑलवेज ट्रिपलेट. Codon is always triplet. That is bases in combination of 3. That is पहला property है, bases in combination of 3 codes for an amino acid. Bases in combination of 3 codes for an amino acid. ठीक है. Second, it is non-overlapping. It is non-overlapping. That is, there is no sharing of bases. That is, there is no sharing of bases. There is no sharing of bases between adjacent code. Between adjacent code मतलब क्या? देखिए, मान लीजिए ये है AUG, GUG, UUU, CUG. ठीक है, अब मान लीजिए 4 है, तो ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है. ऐसा नहीं होगा कि ये जो पहला वाला कोड है अपना बेस दूसरे के साथ शेयर करेगा, फिर ये इससे, ऐसा नहीं होगा. या ऐसा नहीं होगा कि 2 बेस इसके साथ शेयर होगा. ठीक है, तो ये नॉन ओवरलैपिंग है. ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है. इट इज नॉन ओवरलैपिंग. दैट मींस देयर इज नो शेयरिंग ऑफ बेसेस बिटवीन एडजेसेंट कोड. ये पॉइंट समझ में आया सबको? ओके, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए. There is no punctuation mark. There is no punctuation mark. That is, genetic code is commaless. जैसे ये बेसिस कॉन्टिन्यूटी में है, ऐसा नहीं है कि यहां पे फिर एक कॉमा आ गया, फिर इसके बाद एक कॉमा आ गया, इसके बाद एक कॉमा आ गया. इट इज इन कॉन्टिन्यूटी, इट इज कॉमालेस. अरे स्पेलिंग का छोड़ो यार, क्यों स्पेलिंग के लिए परेशान हो रहे? COMM, कॉमालेस. ठीक है, समझ में आया इस पॉइंट का मतलब? सबको समझ में आया कॉमालेस का मतलब क्या है ना? फोर्थ लिखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी,
it has fixed polarity. It has fixed polarity. It has fixed polarity. That is it is always read in 5 dash to 3 dash direction. That is, it is always read in 5 dash to 3 dash डायरेक्शन. ठीक है, मतलब जब भी जेनेटिक कोड को हम लोग पढ़ेंगे तो 5 डैश से 3 डैश. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका देखिए, फिफ्थ, AUG which codes for methionine. AUG which codes for methionine acts as initiation codon. ठीक है, जो शुरुआत होगा तो AUG आएगा. ठीक है, इनिशिएशन कोडॉन. एंड अगर AUG नहीं है, if AUG is not available, then GUG which codes for valine acts as initiation codon. ठीक है, write down AUG which codes for amino acid methionine, which codes for amino acid methionine acts as initiation codon, acts as initiation codon, and if AUG is absent, then GUG which codes for valine acts as initiation codon. Acts as initiation codon. ठीक है, now next अगला लिखिए. टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने हमारे? 64 बने. अमीनो एसिड कितने हैं? 20. तो जो आउट ऑफ जो पॉसिबल 64 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 61 कोड्स फॉर amino acid and 3 acts as stop codon. ठीक है, रन out of the 64 possible combination, out of the 64 possible combination, 61 codes for amino acid and 3 that is UAG, UAA and UGA, and 3 that is UAG, UAA and UGA. Acts as
acts as stop codon. That is, they do not code for any amino acid. That is, they do not code for any amino acid. समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना होगा, यूएजी, यूए, यूजीए, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, ये स्टॉप कोडॉन। ठीक है ना? अब देखो यहां से एक पॉइंट और बनता है, हमारे पास टोटल अमीनो एसिड है 20, ठीक है, और टोटल जो कोडॉन्स है हमारे पास है वो है 61, मतलब 61 कोडॉन जो है दे कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक अमीनो एसिड है उसके लिए एक से ज्यादा कोडॉन है, नहीं तो फिर तो 61 अमीनो एसिड होना चाहिए था ना, है ना? 2 और 1 मोर कोडॉन फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक है, and that's why we say codon is degenerated. Codon is degenerated, that is a single amino acid can be coded by more than 1 codon. समझ में आई ये पॉइंट? क्लियर है सबको? थोड़ा नेक्स्ट लिखिए, there are 61 codons, there are 61 codons which codes for, there are 61 codons which codes for 20 amino acids, which codes for 20 amino acid. So a single amino acid is coded by, so a single amino acid is coded by more than 1 codon. And that's why codon is said to be, and that's why codon is said to be degenerated. That's why codon is said to be degenerated. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी प्रॉपर्टी है क्वेश्चन है। हाँ आयुष बोलो, क्या पूछ रहे हो? आयुष कुछ पूछ रहे थे? डीजेनरेटेड का मतलब होता है फिक्स नहीं है, अगर फिक्स होता तो मतलब एक के लिए एक होता, स्पेसिफिक होता, एक से ज्यादा है एक अमीनो एसिड के लिए, that's why it is degenerated। ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट, कोडॉन जो होता है इट इज नियरली यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल, और वी से इट इज अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है विदाउट एनी डाउट, ठीक है, इट इज नियरली यूनिवर्सल और अनएम्बिगुअस, विदाउट एनी डाउट। मतलब एक कोडॉन कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने टर्म यूज किया नियरली यूनिवर्सल, अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो हम यूनिवर्सल कहते हैं, हम कहते हैं नियरली यूनिवर्सल। तो एक्सेप्शन कहां पे दिखता है? तो एक्सेप्शन हमें दिखता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और कुछ प्रोटोजोन्स में, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमको पढ़ना नहीं है, बस खाली याद रखिए एक्सेप्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और प्रोटोजोन्स का डीएनए। थोड़ा डाउन, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल।
genetic code is nearly universal or unambiguous or unambiguous or unambiguous. That is, a codon codes for same amino acid. A codon codes for same amino acid in all living organism, all living organism, exception mitochondrial DNA, exception mitochondrial DNA and protozoans, exception mitochondrial DNA and some protozoans. सर इसका अर्थ एक बार दोबारा बता दो, थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही। ठीक, मैंने ये कहा मौलिक कि जो कोडोन होता है वो यूनिवर्सल होता है या अनएम्बिगुअस होता है, नियरली। एक्सेप्शन इसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और प्रोटोजोन। ये कहता है कि जैसे मान लो AUG है, तो AUG जो है इट विल कोड फॉर मिथ्योनिन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिवर्सल है ये। अगर AUG प्रेजेंट है तो मिथ्योनिन ही बनाएगा। अगर UUU 3 बार है तो फिनाइल एलिनिन बनाएगा, वो सब में बनाएगा, नियरली। दैट्स व्हाई से इट इज यूनिवर्सल और अनएम्बिगुअस, बिना किसी डाउट के, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है, समझ में आया मौलिक? ना नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट प्रॉपर्टी है इसका कोडोन का, दैट इज वुबल हाइपोथेसिस। वुबल हाइपोथेसिस, WOBBLE, वुबल हाइपोथेसिस। Okay, this hypothesis was given by Crick. वही वाटसन एंड क्रिक वाला क्रिक was given by Crick. अब ये क्या है हाइपोथेसिस, इसको पहले समझ लीजिए, फिर इसको लिख लेंगे। और इस हाइपोथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, क्रिक ने क्या देखा कि जैसे UUU है, ठीक है, दिस कोड्स फॉर अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन। ठीक है, UUU कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। क्रिक ने क्या देखा कि इफ देयर इज चेंज इन थर्ड पोजीशन, base change, generally there is no change in type of amino acid produced. समझ में? क्रिक ने देखा कि अगर थर्ड पोजीशन पे बेस का चेंज हो रहा है, या C आ गया यहाँ पे UUC, तो देखा कि एमिनो एसिड वही प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए इसने कहा कि ये जो थर्ड पोजीशन है, दिस इज वुबल पोजीशन। तो Crick observed that if there is any change in type of base present at third position of codon, generally there is no change in type of amino acid produced. It's not necessary that it will be always there will be no change. No, generally there is no change. And he called this Wubel position, and this hypothesis is known as Wubel hypothesis. ठीक है, अब इसका significance क्या है कि what is the significance of this Wubel hypothesis? दो है। पहला तो बहुत आसान है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं मैं समझा पाता हूं कि नहीं आपको। ठीक है, पहला ये कहता है कि अगर मान लो इफ देयर इज एनी बेस सब्स्टिट्यूशन, इफ देयर इज एनी बेस सब्स्टिट्यूशन एट थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन, अगर कोडॉन के थर्ड पोजीशन पे कोई बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, then generally there is no change in type of amino acid produced. समझ में आया ये पॉइंट? नहीं तो म्यूटेशन हो जाता।
बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, आपको पढ़ाया हुआ बेस सब्स्टिट्यूशन मैंने। तो ये कहता है कि वुबलिंग के कारण क्या हो रहा है कि अगर बेस चेंज हो रहा है तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड नहीं बदल रहा है, तो म्यूटेशन नहीं होगा। समझ में आई है? पॉइंट क्लियर है? अब छोड़ो फ्रेम शिफ्ट, उसे छोड़ो, पॉइंट मैं उस वर्ड नहीं यूज कर रहा, बस ये समझ में आ रहा है ना कि म्यूटेशन नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा इसका क्या कहानी है, समझ लो इसको। ठीक है, दूसरा ये कहता है, ये पॉइंट को ध्यान से सुनना, कि भैया हमारे पास ये कंसेप्ट थोड़ा समझो। अब टीआरएनए आएगा, ठीक है ना, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए का काम है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसको टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करता है? वो एमिनो एसिड को टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, एमिनो एसिड को टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करता है। और उस खास बात क्या है कि उस टैक्सी जो वाला सर्विस है उसमें हमेशा वही सवारी बैठेगा। जैसे मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा और केमिस्ट्री वाले सर जितेंद्र अहलावत, तो मेरी टैक्सी में मैं ही बैठ सकता हूं, अलावा सर नहीं बैठ सकते। ठीक है, मतलब वो एक फिक्स पैसेंजर को हमेशा बिठाएगा। तो अगर मान लो, अगर मान लो 61 कोडॉन्स हैं, ठीक है, 61 कोडॉन्स हैं, तो हर कोडॉन के लिए एक टीआरएनए मॉलिक्यूल चाहिए होगा जो एंटी कोडॉन लेके आएगा, अमीनो एसिड एंटी कोडॉन। तो 61 हो गया टोटल हमारा टीआरएनए इधर, प्लस एक इनिशिएशन के लिए अलग से टीआरएनए चाहिए, मतलब 61 कोडॉन के लिए, ठीक है, और एक अलग से। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट हो गया हमारा टीआरएनए मॉलिक्यूल का, वो हो गया 62 टीआरएनए रिक्वायर्ड, माने 62 टैक्सी सर्विस हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर है? लेकिन वुबलिंग के कारण क्या होता है कि हमारा 20 टीआरएनए कि पहला 2 पोजीशन पे पेयरिंग हुआ और +1 इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, तो 21। तो हमें रिक्वायरमेंट था 62 का, 61 फॉर 61 कोडॉन एंड 1 फॉर इनिशिएशन, तो 62। हमारा 21 में ही काम चल जा रहा है बिकॉज देयर इज वुबलिंग एट थर्ड पोजीशन। दैट मींस दिस वुबलिंग हेल्प्स इन इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। हमें 62 की जगह हमारा 21 से ही काम चल जा रहा है। पहले लिखो, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, पहले लिख लो, फिर मैं अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा दूंगा। ओके, राइट ऑन। Oval hypothesis by Crick. According to this hypothesis, एंटीकोडॉन जो कोडॉन का उल्टा होता भी बताएंगे, वो प्रोटीन सिंथेसिस में आएगा। राइट ऑन। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ऑफ बेस, थर्ड पोजीशन ऑफ बेस in a codon, third position of base in a codon is Wobble position, is Wobble position, that is if there is any change if there is any change in type of base, if there is any change in type of base at third position of codon, generally there is no change in there is generally no change in
type of amino acid produced, and a significance of Weibull hypothesis. Significance of Weibull hypothesis. First, if there is any base substitution at third position of codon, if there is any base substitution at third position of codon, generally there is no change in type of amino acid produced. Generally there is no change in type of amino acid produced. That is, there is no mutation. There is no mutation. ठीक है, लिख लिया. सेकंड लिखिए. Wobbling helps in economy of tRNA molecule. Wobbling helps in economy of tRNA molecule. That is, in place of requirement of, that is, in place of requirement of 61 tRNA for 61 codon, 61 tRNA for 61 codon, and 1 for initiation, only 21 tRNA molecule is required. Only 21 tRNA molecule is required. Twenty amino acid, 24 amino acid, and 1 for initiation. 20 amino acid and 1 for initiation.